also visible. So as in a last lecture, we saw the numerical based on DUIS of one parameter, like differentiation under integral sign. Now we come to this step after solving this numerical, as I clearly explained, that is, uh, if possible, then please try to sort out the things. If possible, then try to solve. If not possible to solve, then definitely I'm here to sort out the numerical. The problem was, you can say, that is I is equal to, or prove that integral 0 to pi by 2 log of 1 plus a sine square of x, log of 1 plus a sine square of x upon sine square x into dx, and we have to prove that is equal to pi into under root of a plus 1 and minus 1 for that root, not in the root. So you should be careful about these things, that is what are the minus, plus and all the things, and according to that part we can move ahead with this numerical. We applied the DUIS rule here, that is differentiation under integral साइन हमने अप्लाई किया था, जिससे डेरिवेटिव किसका निकाला जाता है, द पैरामीट्रिक फंक्शन और पैरामीटर. हियर इट व्हाट इज माय पैरामीटर इज a. so the variable a, so first we differentiated the function with respect to a here, जिससे हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से, लॉग का डेरिवेटिव हमको पता है 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन फिर रिटर्न एज इट इज 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स, and then we taken the derivative of that 1 plus a sine square x. So 1 ka derivative, so by default it will be 0, and sine square x derivative will be, sorry, a derivative will be 1. So sine square x terms will be get cancelled with each other, and will getting the only term is 1 upon 1 plus a साइन स्क्वायर एक्स. उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, दैट इज वी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. So 1 by cos square x will become sec square x, and 1 by cos square x will become sec square x, plus a into sin square x by cos square x will be tan square x. And after simplification, we got this part, and later on we just applied this formula, and we just use this formula for solving this numerical, and we got the value of sec square x minus x minus tan square x is equal to 1. Therefore sec square x is equal to 1 plus tan square x, and the same things we applied here. So we after applying this part we got the result. Now coming to the final solution and the remaining part solution here. So what will be the next step? So the next step, as yesterday I verbally mentioned, but we have to sort out these things. So di by dA which is equal to, I'm taking 1 upon 1 plus a as a common factor, 1 upon a plus 1 or 1 plus a as a common factor we taken, so integral 0 to pi by 2 will be remaining, 0 to pi by 2 sec square of x as it is upon
Now you can see that 1 upon 1 a plus 1 या 1 plus a हमने क्या लिया है, common लिया है. So I'm just writing here that is 1 upon 1 plus a or a plus 1. 1 upon 1 plus a or a plus 1 plus tan square of x into dx. Tan square of x into dx. If I multiply with a plus 1 or this term, then I will get again the same part like 1 plus a into tan square of x. So we applied the same concept here, and after simplifying the terms or taking the common factor, we got this result. आप क्या कर सकते हैं? What will be the next step? The next step will be very sure, that is we aware about these things, or we should remember few things. So I'm just applying here so so that you will understood very well. So di, because इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है, इसके लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है. डी आई बाई डी ए, एक स्टेप खाली लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन a plus 1 or 1 plus a integral 0 to pi by 2 sec square of x upon, I'm just writing this part as under root of 1 upon 1 plus a, and this is will be square. तो अगर रूट स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो रूट खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, एंड प्लस tan square of x into dx into dx. Now we have to sort out the few things. If I'm saying that is, or if I substitute here, let or tan x is equal to t. If tan x is equal to t, oh sorry, t is equal to tan x or tan x equal to t, then what will be my derivative? The derivative of this part will be, derivative of this is, I'm writing here, dt by dx will be sec square of x. Therefore dt is equal to sec square of x into dx. Now this is definite integral or defining integral. So we should also change the limit point of 0 to pi by 2 here, because the variable is changing here, x to t. So we have to substitute the limit point also. So I'm just substituting one by one. When x equal to 0, t is also 0, because you have to substitute here. And when x equal to pi by 2, when x equal to pi by 2, t is equal to not defined or infinity. T is equal to not defined or infinity. So that the limit point is clearly changed here. So di by dt, di by dt, which is equal to 1 upon a plus 1 or 1 plus a integral 0 to infinity sec square x into dx, which is equal to your dt. So dt upon, this is kept as it is, though I'm just writing this part as it is, under root of 1 upon 1 plus a, this is square plus t square. अब एक फॉर्मूला आपने अगर देखा होगा या याद होगा आपको, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप लोग, अगर फॉर्मूला देखा है आपने. इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव पार्ट स्क्वायर रहता है, या अंडर रूट नहीं, दैट स्क्वायर पार्ट, और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बेसिस वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो देन दैट फॉर्मूला विल डायरेक्टली अप्लाई हियर. You can just go through, as I clearly mentioned before the starting of this chapter. You should go through with the all integration formula which was uh, available in your 12th standard, or your 12th standard notebook, or the textbook or formula book you must refer, so that
बिकॉज डीआईएस में डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे बैठ के फिर से सीखना नहीं है आपको। तो डी आई बाय डी ए नॉट डी टी, तो डी आई बाय डी ए विच इज इक्वल टू 1/a+1 into, so this is directly we can apply root of a+1 or 1 plus a into tan inverse of t into root of a+1। अगर याद हो तो याद, नहीं तो फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा इस फॉर्मूले को। अगर आपको याद हो 1 और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला था? अगर याद होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a होता था। The same formula we applied here. You can just see to it that this is your x square, this is your a square. So 1/a मतलब 1 upon अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस ए। तो 1√1 में है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, तो दैट्स वाई रूट ऑफ 1 प्लस ए डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x बाय x क्या है आपका? t है। सो t अपॉन ए अब आपका क्या है यहाँ पे? a इज इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस ए है। तो फिर से 1 मतलब नथिंग, तो वी कैन जस्ट टेक दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए और a+1 इन न्यूमरेटर। तो सेम थिंग वी अप्लाई, दिस इज फॉर्मूला। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ऑलरेडी ये फॉर्मूला बहुत बार यूटिलाइज किया होगा आपने 12th में, बहुत कॉमन मेथड है। तो 0 to infinity, now we have to just substitute the limit point। so di/da which is equal to 1/a+1, अपर माइनस लोअर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इंफिनिटी, व्हेन आई एम अप्लाइंग इंफिनिटी, so what the result you are going to getting, so you can just see to it that clearly root of a+1 as it is, क्योंकि आपको t के जगह पे रखना है, तो इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इंफिनिटी, एंड tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2। तो π/2 लोअर लिमिट पूरा जीरो आने वाला है, बिकॉज जीरो tan इनवर्स ऑफ जीरो, so that whole thing will be zero, so 0 into anything will be 0, therefore the lower limit is 0, so I'm not writing lower limit. So this root of a+1 is cancelled with this part, so therefore di/da which is equal to 1 by root of a+1 into π/2 into π/2। now hope the things are clear। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू a। so the next step we can apply here, di/di is equal to π/2 integral da upon अंडर रूट ऑफ a+1। इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली। सो no need to uh, take more steps, you can apply directly here। so di integration will be I is equal to π/2। now what will be the integration of this part? you can just see that integration of this part क्या होगा? can anyone comment on this part or integration of this part? 1 by root of a+1। हाँ सर, वो a+1 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1/2 हो very जाएगा। good, very good। so we have to take this part one more step, I'm just taking here, that is for understanding, otherwise directly भी लिख सकते थे। a+1 raised to power -12 into dA, therefore I is equal to, I'm just writing here continuously, I is equal to π/2
and integration of this part. So minus half plus 1 will be, you can just say that 1 by 2, 1 by 2 आपका हो जाएगा, और डिवाइड में भी आपको 1 by 2 लिखना रहेगा. तो I'm just writing 1 by 2, डिवाइड में भी आप लिखोगे तो क्योंकि I'm just writing a plus 1 half divided by 1 by 2 प्लस c. तो ये 2 और ये 2 सीधा सीधा कैंसलेशन में चले जाएगा आपके लिए. सो I इज इक्वल टू पाई इंटू ए प्लस 1 रेस टू हाफ लिखो या रूट में लिखो, बात एक ही रहता है, प्लस c. दिस इज योर रिजल्ट, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. सो for calculation of c, put a equal to 0. Therefore I of 0, we can say that I of 0 is equal to पाई प्लस सी. ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 1 रेस टू हाफ मतलब 1 हो जाता है, तो पाई प्लस सी आपको मिलेगा यहाँ पे, पाई प्लस सी. अब मेन किस में जाओगे? मेन क्वेश्चन में. मेन क्वेश्चन मतलब क्या? आई एम जस्ट रिमाइंडिंग दिस पार्ट. आई ऑफ ए इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन क्या था? इफ यू रिमेंबर, 0 टू पाई बाय 2 log of 1 plus a of x था, if you remember, upon sin square of x. यही हमारा क्वेश्चन था, into dx. तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस वी कैन अप्लाई. तो देखते हैं हमको क्या मिलता है. तो यहाँ पे अगर देखो a इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं? 0. तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और 1 प्लस 0 इज 1. तो log of 1 is 0. So 0 upon anything will be 0. Therefore I of a is equal to, आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे? I of a equal to 0 मिलेगा. I of a equal to 0 मिल गया. इसका मतलब c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई. c is equal to minus of pi. Therefore the final result of this numerical is I is equal to pi into, or pi into under root of a plus 1, या a plus 1 raised to half लिखो, minus pi, because c is equal to minus of pi. अब ये रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूफ में चाहिए था. तो I is equal to क्या होएगा? इफ आई एम टेकिंग pi as a common factor, then what I will get? Under root of a plus 1 और माइनस 1. और यही हमको वेरिफिकेशन में वेरीफाई करना था. इफ यू कैन सी दैट this is our proof for this respective problem, pi into under root of a plus 1 minus 1. So just see that क्या अप्लाई किया गया है, कैसे इंटीग्रेशन आया है. इस तरह से 1 अपॉन a प्लस 1 कॉमन क्यों लिया गया है? ऐसा है, मन में आया तो नहीं लिया गया है. वाई? बिकॉज ये फॉर्मेट नहीं क्रिएट होता है, इसकी वजह से 1 अपॉन a प्लस 1 कॉमन लिया गया है. वो पहले ले लो या बाद में ले लो, बात एक ही है. Now anyone having any doubts regarding this problem, so please ask. If no doubt, we can proceed with one or two more example. सर बोलो. सर वो पाई बाय 2 और 2 कैंसिल हुआ क्या? हाँ, पाई बाय 2 और 2 कैंसिल होएगा ना. सर वो पाई बाय 2 एंगल है, फिर भी कैंसिल होगा क्या? तो क्या होएगा? माइनस हाफ प्लस 1. नहीं नहीं सर, वो समझा मेरे को, लेकिन सर वो पाई बाय 2 एंगल का है ना? क्या एंगल का? मतलब tan इनवर्स को करने के बाद एंगल से कुछ आया तो भी कैंसिल हो जाएगा? एंगल? एंगल का किधर है वो? वो तो सिर्फ ओनली पाई बाय 2 है. ओके सर. एंगल कब होता है?
when we are saying that is it is an angle or something, when trigonometric ratios are present, अगर trigonometric ratios का present ही नहीं है तो एंगल कैसे होगा वो? एंगल किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता है. अगर मैं बोलूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल बोलोगे, लेकिन वो किसका एंगल होगा? अदरवाइज वो 30 डिग्री के लिए अगर 30 डिग्री है या पाई/2 है या पाई/6 है और समथिंग, यहाँ पे tan इनवर्स का वैल्यू हमको मिला है, दैट इज व्हेन आई सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी आई गॉट पाई/2. तो अब इसके बाद ये एंगल थोड़ी होगा, अब ये एक नंबर हो गया, मतलब एक टर्म हो गया. वो टर्म आप कैंसिल करो, ऐड करो, अगर ऐड होता है तो सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट होता है तो. अगर tan ऑफ पाई/2 रहता, tan के एंगल में रहता, then we are not supposed to cancel this part, but this is not in any terms of angle or something, तो ये cancellation तो डायरेक्ट होगा. Now we have to take more examples, one or two. These are this all 8 marks numerical, 8 marks के numericals हैं सब, but ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से सभी न्यूमेरिकल्स का वेटेज 5 मार्क्स हो चुका है. अदरवाइज सब न्यूमेरिकल्स 8 मार्क्स के हैं. ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए ही रहता है. सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको मिलता था हमेशा, मतलब हर एक एग्जाम में पिछले अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप अगर उठा के देखोगे तो ओनली वन क्वेश्चन वाज देयर फॉर 8 मार्क्स. सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आता है, वो भी 8 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का. So I think there is no doubt. So coming to the next problem, पूरा क्वेश्चन दिखाऊं? ओके, see the whole question. This was a question. Prove that 0 to pi/2 log of 1 plus a sin square x upon sin square x dx. सॉल्यूशन ये तो अभी शुरुआत में ही मैंने एक्सप्लेन किया है. यहाँ से हमने आज का वर्क प्रूव आगे किया है. 1 + a 1/1 + a और a+1 भी टेकन एज अ कॉमन फैक्टर. उसके बाद आगे प्रोसीड किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, and we applied this formula dx upon a square plus x square here इसमें. So we got the result. Okay, now coming to the next example. Evaluate evaluate integral 0 to pi/2 dx upon 1 plus a sin square of x, and deduce that
integral 0 to pi by 2 sine square of x upon 3 plus sine square of x raised to power 2 times into dx, which is equal to pi root 3 upon 96 upon 96. So this is the example. We have to simplify, we have to sort out, or we have to apply the DUIS rule. सॉर्ट आउट करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को देखो, अच्छी तरह से समझो, कैसे कर सकते हैं, कैसे कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है. नाउ इफ यू कैन सी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा उसको समझना इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें हमको वहाँ पे हिंट के तौर पर दिया जाता है न्यूमेरिकल में, उसको हम हमेशा यूटिलाइज किया करना चाहिए, क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हमको हिंट या फिर प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है उसका आइडिया नहीं आता है. So similar thing we have to apply here also. First thing is we have to evaluate the terms. So just wait 1 second. My lecture 12:10 or 12:20 lecture will be conducted by Marina ma'am, and Marina ma'am का जो lecture है वो शिवम sir conduct करेंगे. So please take a note of this part, solution of this problem. इसके बाद आप मरीना मैम के क्लासरूम में लॉग इन करो, मतलब या ज्वाइन करना या गूगल मीट में. सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, या डायरेक्ट डीवाईएस अगर अप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आ पाएगा मेरे को लगता है. या अगर किसी को डायरेक्ट डीवाईएस में अगर रिजल्ट आता है तो दे कैन, बट थोड़ा सा यहाँ पे वर्क दिया गया है, वो वर्क हम लोग फिनिश करते हैं. डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स which is equal to integral 0 to pi by 2. Now what is 1 in trigonometric concept with between sine and cos? Dx upon, we can write this part as cos square of x plus sine square of x for this one, and plus a into sine square of x, if I'm not wrong. So that we can take something here and we can apply something here. अभी ये न्यूमेरिकल इस टाइप का हमने किया है ऊपर, इसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के बाद शायद आपको आइडिया आ जाए कैसे करना है, क्या करना है. इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, वी कैन टेक साइन एक्स एज ए कॉमन फैक्टर और साइन स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालें. तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज, दिस dx as it is upon, while taking sine square x as a common factor, the remaining is a plus 1, and the term will be sine square of x as it is and plus cos square of x as it is. तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए या ए प्लस 1 बच गया आपका. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि सेम टर्म मिला है या नहीं मिला है. अभी नेक्स्ट क्या करोगे, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos स्क्वायर एक्स. तो डिवाइडेड बाय
cos square x in numerator and denominator. Therefore, this part will be, which is equal to integral 0 to pi by 2. This will become sec square of x into dx upon, this is a plus 1 tan square of x plus 1, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा cos square x में. फिर से यहाँ पे उसी तरह सम आ रहा है, तो मैं इसका रिजल्ट तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ. सो रिमेनिंग पार्ट सॉल्व होगा नहीं होगा थोड़ा सा क्वेरी है मेरे लिए, या आप लोग शायद सॉल्व कर भी लो, क्योंकि इसका रिजल्ट, इसका इंटीग्रेशन हमने शायद सॉल्व किया था. अगर आपको देखना है तो ऊपर ही हमने लिखा है, यहाँ पे ऊपर ही हमने उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिखा है. तो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज पाई बाय 2 1 by root of a plus 1. So I'm just writing here, that is integration of this part, which is equal to pi by 2 into 1 by root of a plus 1 लिखो, या root of a plus 1 यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया है. क्या करोगे, a plus 1 कॉमन ले लोगे. नाउ what we have to perform here next, अब क्या कर सकते हैं, DUIS अभी अप्लाई करना होगा हमको, क्योंकि बिना DUIS के रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएगा. विच रिजल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. दिस पार्ट, ये पार्ट हमने डिड्यूस किया, इवेलुएट किया, लेकिन ये पार्ट का इंटीग्रेशन विदाउट DUIS मुश्किल है हमको मिलना. तो DUIS अगर हम अप्लाई करें इसमें, इस रिजल्ट में, तो क्या मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसका रिजल्ट तो हमको यहाँ पे आ चुका है. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट, कैन एनीवन कमेंट ऑन दिस पार्ट. I'm just writing here for understanding. DUIS with respect to a. Therefore, integral 0 to pi, integral 0 to pi by 2 pi by 2 sine square x upon 1 plus a sine square of x raised to power twice into dx which is equal to, ये किसका रिजल्ट है, आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए आपको. The result of this part is 1 upon 1 plus a sine square x. So I'm just writing this step, pi by 2 minus half a plus 1 raised to power minus 3 by 2.
सो डी यू आई एस यहाँ पे अप्लाई किया है, पाई बाय टू डेरिवेटिव किया है, क्योंकि डी यू आई एस में पहला विथ रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करते हो, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे करेंगे तो पाई बाय टू रूट ऑफ ए प्लस वन विल बी ए प्लस वन रेस टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू फ्रंट में आ जाएगा, और a plus 1 raised to power minus half minus 1 will be minus 3 by 2. Therefore, at the next step, I am just writing here 0 to pi by 2 sine square of x upon 1 plus a sine square of x raised to power 2 into dx, which is equal to pi by 4 I think this will be minus ना, ये माइनस होना चाहिए। सर सर वो -2/3 होना चाहिए ना? आपने -1/2 लिखा है, वो -2/3 होना चाहिए ना? -2/3 क्यों होगा? डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूं, एक्स रेस टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव क्या होएगा? हाँ सर, समझा समझा। -1/2 इंटू एक्स रेस टू -3/2 होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे डी यू आई एस कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं, सो दिस पार्ट विल बी माइनस, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, सो दिस विल बिकम 5/4। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन अराइज करवा रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे कैसे मैं ये सब टर्म्स लिखते जा रहा हूँ। a प्लस 1 रेस टू -3/2। अब a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन में आऊंगा, a इज इक्वल टू 1/3, a is equal to 1/3, therefore this part will be integral 0 to pi by 2 sine square of x upon 3 plus sine square of x what was our problem, raised to power 2, yes, raised to power 2 into dx, which is equal to, substituting here as a equal to 1/3, so 1/3 plus 1, it will becomes 3 plus 1 is 4, 4/3, so 4/3 means you can see that this is -3/2। -3/2 को किस तरह लिखा जाता है? We should remember this part। -3 को किस तरह लिखा जाता है? You should remember these things, because if I'm going to taking downward, -3/2 है क्या basically? If I'm saying that is x raised to -half into x raised to -1, अगर ऐसा लिखूं तो इसका मतलब वो क्या होता है, x raised to -3/2। अगर डाउन में इसको ले लूं, डाउन में इस पार्ट को अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं इस पार्ट को, तो शायद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, π/4 अपॉन रूट ऑफ a प्लस 1 into a plus 1, like this, root of a plus 1 into a plus 1, because root of a plus 1 is what, 1/2, a plus 1 is what, 1, so a plus 1 raised to power half and into a plus 1 raised to power 1, that is equal to a raised to plus 1 3/2, उसको ऊपर लोगे तो a plus 1 raised to power -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं a इक्वल टू 1/3 यहाँ पे, तो you just simplify this part clearly, this part will becomes what, 1/3 means 3 plus 1, that is 4/3,
4/3 होएगा ये पार्ट, √4/3। फिर ये +1 में सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूं तो यहाँ पे भी क्या होएगा, 4/3। अब उसको सिंप्लीफाई अगर सॉर्ट आउट करूं तो कैन आई गेट दिस रिजल्ट लाइक पाई इंटू √3 अपॉन 96। सबके पास कैलसी है, सब्स्टिट्यूशन करके देखो रिजल्ट आता है क्या यही। एनीवन कमेंट ऑन सर दिस। लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन से भी वो 3² भी आएगा ना डिनोमिनेटर से? लेफ्ट हैंड साइड के, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन से। सर a = 1/3 पुट किया हम्म। तो ये 3 + sin²x/3 भी आएगा ना? अब 3 + sin²x/, 3। a = 1/3 यहाँ पे पुट किया ना अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड में, यस सर, इंटीग्रेशन के अंदर। हाँ तो क्या होएगा, 1 + 1/3 sin²x, तो वी रिटर्न एज 3। मतलब वहां से 1/3 को बाहर निकाला है तो वो 3 इधर आके मल्टीप्लाई होएगा ना, और डिवाइड होएगा, राइट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। जस्ट सी, वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल इज दिस, बिकॉज ऑलरेडी उसका एक पार्ट हमने ऊपर सॉल्व किया है, सिर्फ छोटा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है सम्स को। एनीवन? सर डिवाइड होगा ना 3 राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, बराबर। सर 3² होगा ना? या 3 स्क्वायर, बिकॉज रेस टू पावर 2 है, सो इट विल बिकम्स 3 स्क्वायर। ये यस सर। पावर विल बी, तो 9 कंसिडर कर लो, 9, तो 9 यहाँ पे आके डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर में सर। ओके, बिकॉज a = 1/3, तो 1/9 आप कॉमन निकालोगे उस ब्रैकेट से, यहाँ से आप 1/9 बाहर निकालोगे तो ये 1/9 रहेगा। अगर सिर्फ 9 रहता तो 9 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन ये 1/9 होने की वजह से जब यहाँ पे आएगा तो फिर से 1/9, तो 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ जस्ट चेक इट प्रॉपरली, बिकॉज कि प्रॉपर π√3/96 ही आता है a = 1/3 रखने पे या नहीं। जस्ट वेरीफाई इट प्रॉपरली, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, खाली एडजस्टमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन। जस्ट सी टू इट दैट π√3/96 आता है या नहीं, नहीं आता है, राइट है। 3 × √3/32
3√3। ओके, हाँ सर आया। आ गया। अब मेरा क्वेश्चन मैं चालू कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ, क्योंकि मेरे को ये सब नहीं समझा है, इसके लिए मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये था, ये हमने सॉर्ट आउट करके इसका रिजल्ट ये लेके आए। कैसा है ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है ऊपर। किसी को अगर नहीं समझेगा तो यू कैन जस्ट सी टू इट दैट ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये वाला पार्ट, इसको a+1 को कॉमन फैक्टर यहाँ पे ये पार्ट, इसको ऑलरेडी हमने सॉर्ट आउट किया है। सॉर्ट आउट करने के बाद हमको रिजल्ट आता है, इसके लिए मैंने उसका रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे पाई बाय 2 रूट ऑफ a+1 लिख दिया है। अब यहाँ पे डी यू आई एस विथ रिस्पेक्ट टू ए अप्लाई किया है। ये स्टेप किधर से आया, कोई मुझे समझाएगा? कैन एनीवन? यस, आई मस्ट अंडरस्टूड के आप लोग को समझ में आया है या फिर ऐसे ही मन से बोल रहे हैं सब लोग? क्वेश्चन है ना उसी को डिफरेंशिएट किया है आपने। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रहा है आपका बराबर। सर वो जो क्वेश्चन है ना उसी को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ये इसको, यस सर। ओके, इसको डिफरेंशिएट किया है, वेरी गुड। तो हमको क्या आ गया, वी स्क्वायर आ गया। यू बाई वी का रूल अप्लाई कर दिया है, बिकॉज 1 अपॉन, या यू बाई वी बोलो या फिर सीधा आप अप्लाई करोगे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। तो सेम वे से यहाँ पे अप्लाई किया है, विथ रिस्पेक्ट टू ए किया है। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करने का हमेशा प्रॉपरली, अदरवाइज बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ से अचानक से ये स्टेप सर ने लिख दिया, अभी तक तो ये चल रहा था, अचानक से ये स्टेप कैसे हो गया, अभी ये इसको फिर इक्वल टू ये क्यों? बिकॉज इसका सबका रिजल्ट मैंने इसलिए डायरेक्टली लिखा है, मैं पहले ही आपको कहा कि इसका मैं डायरेक्टली, ये किसका रिजल्ट है, इसका, तो इसका पूरा आंसर क्या आया है हमको, पाई बाय 2 रूट ऑफ a+1। अब उसको डायरेक्टली डी यू आई एस अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या हुआ है, यू बाई वी अप्लाई करो या 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो -sin² x अपॉन 1 + a sin²x⁻² हो गया है पाई बाय 2। ये तो डेरिवेटिव एकदम बेसिक रूल है डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव अप्लाई किया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपरली, ये -1/2 और ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब हमारा, हमको प्रूफ क्या करना है, आवर प्रूफ इज क्लियरली मेंशन हियर दैट इज 3+। अब ये 3 कैसे आएगा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से a+1 का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया हो, तो वैसे ही 3 हमको लाना है। कहाँ पे, यहाँ पे हमको 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a = 1/3 रखना पड़ेगा। a = 1/3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि a इधर है और इधर प्रेजेंट नहीं है। तो जस्ट सीट, इसको हमको आउट करना है, इसके लिए 1/3 रखा गया है। सपोज यहाँ पे 3 है, अगर 2 रहता फॉर एग्जाम्पल, तो a = 1/2 आपको रखना पड़ता। अगर 4 + sin² x समथिंग रहता, तो आपको यहाँ पे 1/4 रखना पड़ता, तभी जाके आप प्रॉपर 4 + sin², मतलब इस पूरे इसको पूरे को आपको मेन जो आपको रिड्यूस करने बोला है उस फॉर्मेट में लाना है। तो उसके लिए हमने a = 1/3 रखा है, तो a = 1/3 जैसे ही हम रखते हैं यहाँ पे, मैं वो स्टेप नहीं लिखा हूँ, a = 1/3 रखते हैं, तो यहाँ से 1/9 आप बाहर निकालोगे। वाई 1/9? बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 3 लिखोगे, तो यहाँ पे अगर a = 1/3 अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो और फिर उसके बाद उसको आउट करोगे, तो ये स्क्वायर होने की वजह से आपको 3² लिखो या 9 आपको यहाँ पे से आउट करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप लगेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, बाद में कैसा ये शेयर जब करूँगा, that time it will be a difficult to understand. While substituting this part, 0 to pi/2 sin square of x into dx upon 1/9, 3 plus 3 plus sin square of x raised to power 2।
और उसके बाद हमको ये रिजल्ट मिलता है। सो जस्ट सी टू इट दैट अगर इसको फिर से अंदर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट अगेन, मतलब री सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो इसके लिए हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट देखो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, प्रीवियस न्यूमेरिकल को खाली थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है, बाकी कुछ नहीं। नाउ आई एम जस्ट गिविंग 1 और 2 न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क पर्पस। होमवर्क के लिए आप लोग रखना है इस चीज़ को और सॉल्व करने की कोशिश करना हर कोई, बिकॉज जब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट है कि आप इसको टैकल कर लो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी, बिकॉज यू मस्ट, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और जिसको भी नहीं आएगा वो प्लीज़ मेरे से पूछेगा मंडे ट्यूसडे को, बिकॉज कमिंग फ्राइडे सैटरडे हमारे मेरे लेक्चर्स नहीं होते हैं। तो जस्ट सी टू इट दैट प्रॉपरली। टुडे आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स, जो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है वो सब आज अपलोड करूंगा थर्सडे को। क्वेश्चन इज 0 to pi dx upon a minus cos x is equal to, मतलब प्रूव दैट है इज इक्वल टू pi upon root of a square minus 1 comma a is greater than 0, deduce that deduce that first integral 0 to pi dx upon a minus cos x raised to power 2 times is equal to pi a upon a square minus 1 raised to power 3/2। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। डिड्यूस करना है, जैसे वो प्रूफ हो जाएगा तो ये डिड्यूस वाला पार्ट हो ही जाता है, खाली कंपैरिजन प्रॉपर करो, प्रॉपर सॉल्यूशन लाओ। सेकेंड, इंटीग्रल 0 to pi dx upon 2 minus cos x raised to power 2 times 2 pi upon 3√3। तो सॉर्ट आउट करो, सिंप्लीफाई करो प्रॉपर वे से, प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बताया हूँ, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी इस टाइप का इंटीग्रेशन आप कॉलेज लेवल में अपने 11th 12th में, 11th में तो नहीं, 12th में आप सॉल्व किए हो कि जब भी 1/a माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मेट प्रेजेंट रहता है तो t इज इक्वल टू tan x/2 आप सब्स्टिट्यूट करते थे, अगर आपको याद होगा वो मेथड। देन तो यहाँ पे सबसे पहले t इज इक्वल टू tan x/2 सब्स्टिट्यूट कर लो और उस हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो। तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प बाय कमिंग ट्यूसडे। कोशिश करो सॉल्व करने की, नहीं होता है तो डेफिनेटली आई विल सॉर्ट आउट। जस्ट अ सेकेंड, डोंट लेफ्ट द लेक्चर। So I'm just proceeding with the attendance part.
Just a second, due to some mistake, attendance is not possible to take. I'm just sharing one form so that you people will. Just wait. प्लीज रिफर अ चैट बॉक्स. आई जस्ट शेयर द लिंक. तो वो लिंक पे आप जाके अपना रोल नंबर, email ID and name fill कर दो, so that I will consider as an attendance. Just uh, see a link and fill that link as soon as possible. टिल 12:20 तक लिंक ऑन रहेगा, उसके बाद ये लिंक ऑफ हो जाएगा. तो प्लीज़ 12:20 से पहले ही सब लोग फिल कर देना. नाउ यू कैन मूव अहेड फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, बाय कमिंग ट्यूसडे. टेक केयर. बाय बाय.